It is valid for all types of rigid bodies. First of all, see the theorem part. Then I will give you the proof. See here, any object of any shape, any object of any shape, any object of any shape. Whether it's a two-dimensional, it's a three-dimensional, it doesn't matter. For all type of rigid bodies, okay? Let's say you want to calculate a moment of inertia around this axis, about this axis. Moment of inertia about this axis. Moment of inertia about this axis. Just say. Let's say I. You want to calculate I. Moment of inertia about this axis. Okay. Now, so first of all, तुम्हें I find out करना about this axis. Huh? First of all, locate center of mass. Where is the center of mass? Let's say here is the center of mass. Let's say here is the center of mass. Center of mass. Then draw an axis which passing through center of mass. This is center of mass. तुम्हें I find out करना है. Moment of inertia about this axis. तो आपने क्या किया? पहले सेंटर ऑफ मास को क्या किया? लोकेट किया. उसके बाद आपने सपोज कर लो यहाँ पे एक्सिस हम ड्रॉ कर देते हैं लाइक दिस वे. Like this one here. Let's say this is moment of inertia about this axis IC. IC means that axis which is passing through center of mass. वो center of mass से pass हो रहा है. Is it clear? Okay. So तुमको I find out करना है. और IC तुमने पहले center of mass को locate किया. या आप ऐसे बोल दो, लिव. हम ऐसे बोल सकते हैं, just wait. एक center of mass, एक ऐसा axis देखो जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है. तुम्हें फाइंड आउट करना है आई. ओके, लेट्स से the separation between the two axes, these two axes are parallel and the perpendicular separation between the two axes is, let's say it is D. You want to calculate I, so first of all you locate the center of mass. एक axis imagine किया वहां पर और उसके around rotate कर रहा था. IC मतलब moment of inertia when axis passing through center of mass. D is the normal separation between both the axes. M is the mass of the body. So what the theorem is, if you want to get I, so moment of inertia I is equal to moment of inertia about that axis which is passing through center of mass plus mass into square of the distance between, perpendicular distance between both the axes, md square. So just here, you want to calculate I. So I is equal to IC. IC is that moment of inertia passing through center of mass. And D is the normal separation between both the axes. M is the mass of the body. So I is equal to IC, that is axis passing through center of mass, plus M is the mass, D square of the distance between them. This is theorem. Note down the theorem, then I will give you the proof. Copy down this theorem. Have you understood this theorem, boys and girls? I is equal to IC plus MD square. Yes, sir. Okay, copy down this one. Then first of all, I have a doubt. Yes. Sir, that electricity wala chapter, मतलब how much part is left more for that chapter? चैप्टर तो बहुत बड़ा है, बट आई एम डूइंग अकॉर्डिंग टू जस्ट योर. अभी रह गया चैप्टर, थोड़ा सा रह गया है. क्यों, क्या हुआ बेटा? सर वो जगह छोड़नी थी. अच्छा, नहीं, एक काम करो तो लीव एट दिस 4-5 पेजेस, तो लीव 5-6 पेजेस, 6 या हमको 6-7 पेजेस छोड़ दो, ठीक है? ओके सर, थैंक यू. नाउ कॉपी ऑन दिस वन.
then I will you give the proof. Sir, can you please explain this again in short? Second, which one beta? Second, ये Sir, theorem. parallel. अच्छा, हाँ, parallel sir. axis. Okay. Actually, just here, actually you want to find moment of inertia about this axis. You want to calculate I. So then you have to locate first of all center of mass. Let's say here is the center of mass. Then try to get the moment of inertia about this axis, which is passing through center of mass. These two I जो find out करना है और IC C मतलब passing through center of mass. C लगाते हैं तो इसका मतलब axis कहाँ से pass हो रहा है? Center of mass से pass हो रहा है. Let's say normal separation between both the axes is d. M is the mass of the body. Then the theorem is you want to calculate I. So I is equal to IC means moment of inertia about that axis passing through center of mass plus product of mass into square of the perpendicular distance between both the axes md square. ठीक है, मैं इसको प्रूव करता हूँ. वेट, उसको समझाऊंगा अभी. कॉपी कर लीजिए. Okay, sir. रोटेशनल मोशन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और रोटेशनल मोशन आपके बोर्ड्स में क्लास 12 में फर्स्ट चैप्टर है. 12 का फर्स्ट चैप्टर है बोर्ड्स का, स्टेट बोर्ड का. Can I start proof? Yes, sir. Yes, sir. Just see the proof. Let's say again any object of any shape. ठीक है, okay. Let's say this is a moment of inertia I. Here, ये I है, okay. And this is of course center of mass. Let's say this is center of mass here. Center of mass. Let's say draw axis here. Normal separation between them is D. And let's say moment of inertia about the center of mass is IC. Okay. Let's take a very small elemental particle of mass dm here. Let's say I'm taking dm here. A small elemental mass dm here. Let's say distance ये समझ में, एक छोटा सा मास dm हमने अज्यूम किया. अच्छा, अब अगर मैं ये डिस्टेंस ले रहा हूं तो ये डिस्टेंस कितना होगा? लेट्स से दिस डिस्टेंस इज लेट्स से आरसी ले लेते हैं. लेट्स से आरसी, और ये जो डिस्टेंस है ये लेट्स से दिस इज आर. छोटा सा मास ले लिया, ये आरसी हो गया और ये आर हो गया. ओके, नाउ
दोनों के बिटवीन जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू दैट इज डी हियर, ये तो डी है, ओके, डी है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है, ओके। तो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई क्या हो जाएगा, देन आई बिकम इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज टू डीएम आर स्क्वायर, डीएम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर होता है ना, डीएम फॉर्मूला बताया था मैंने, और आईसी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम आर सी स्क्वायर, आर सी स्क्वायर, ओके। नो, आपने लॉ पैरेललोग्राम किया था ना, याद है, वेक्टर में लॉ पैरेललोग्राम, वेक्टर में लॉ पैरेललोग्राम किया था ना, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं। थोड़ा सा इसको थोड़ा फॉरवर्ड एक्सटेंड करो, ये फॉरवर्ड एक्सटेंड करो अप टू ईयर, वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इसे लॉ पैरेललोग्राम में किया था 90 डिग्री। तो लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। तो आपका इस तरह से ट्राइंगल बन रहा है, लुक हियर, you are getting triangle like this way, this is RC and triangle इस तरह से बन रहा है इधर, ये एंगल थीटा है, तो sin थीटा is perpendicular upon hypotenuse, sin थीटा is perpendicular upon hypotenuse, तो आपको मालूम है sin थीटा is equal to perpendicular upon hypotenuse, तो y क्या हो जाएगा, that is RC sin theta, and cos theta is based upon hypotenuse, तो x is equal to RC cos theta। तो इसका मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू RC sin थीटा, और ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू RC sin थीटा। डायग्राम समझ में आ रहा है? सर cos थीटा हो गया ना? हाँ, यस, थैंक यू वेरी मच, cos थीटा हो गया, यस, आई थिंक लिखने में, थैंक यू, cos थीटा। Sorry, cutting. Now apply the Pythagoras theorem here. Take the bigger triangle, write down the Pythagoras theorem here. So apply the Pythagoras theorem. So what you will get? ये बड़ा वाला triangle में Pythagoras theorem apply कर रहे हैं. So apply the Pythagoras theorem. It become r square is equal to hypotenuse square is equal to what? Base square plus height square. तो base क्या हो जाएगा? d plus rc cos theta. Base square plus this height square RC sin theta whole square। देखो पाइथागोरस थ्योरम समझ में आया? अप्लाई द फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू a स्क्वायर, हाँ ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और ये इधर का क्या आ जाएगा, आर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1। तो बेटा ये दोनों मिलके कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2d आर सी कॉस थीटा। देखो यहां तक समझ में आया? पूरी इक्वेशन को डीएम से मल्टीप्लाई कर दो और इंटीग्रेट कर दो, पूरी इक्वेशन को डीएम से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दो। तो मल्टीप्लाइंग बाय डीएम, मल्टीप्लाइंग बाय डीएम, डीएम से मल्टीप्लाई करके एंड इंटीग्रेटेड, और उसके बाद इंटीग्रेट कर दो, तो कैसा हो जाएगा, दैट बिकम डीएम आर स्क्वायर, ये आ जाएगा डीएम आर सी स्क्वायर
ये आ जाएगा डीएम, प्लस आएगा इधर, प्लस डीएम डी स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2d बाहर चला जाएगा, डीएम आर सी कॉस थीटा, देन व्हाट विल हैपन। अब देखो ये वाला फॉर्मूला किससे मैच कर रहा है, ये वाला फॉर्मूला मैच कर रहा है आई से, और ये वाला आईसी से मैच करेगा, दोनों ये इधर लाके रख देंगे तो क्या होगा, आई इज इक्वल टू आई सी प्लस डी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम मतलब टोटल मास, दिस टर्म विल बी जीरो, लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाई इट इज जीरो। इंटीग्रेशन ऑफ डीएम क्या हो जाएगा, टोटल मास ऑफ द बॉडी, टोटल मास ऑफ बॉडी दैट इज इक्वल टू कैपिटल एम। लेस से मैं इसको बताता हूं जीरो क्यों हो रहा है, वेट, टोटल मास ऑफ द बॉडी, तो क्या हो गया, आई इज इक्वल टू आई सी प्लस एम डी स्क्वायर। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर लास्ट वाले टर्म को आपने जीरो क्यों कर दिया, पहले बताओ यहां तक समझ में आया, एक्सेप्ट दिस वन की इट इज जीरो, ये जीरो हो रहा है, बाकी सबको समझ में आया। Yes, sir. तो मैं एक्सप्लेन करता हूं व्हाई इट इज जीरो, कंप्लीटेड देन आई विल एक्सप्लेन इट व्हाई इट इज सेकंड एज जीरो। इंटीग्रेट मतलब क्या किया है सर? कुछ ने डीएम से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट किया, तो तुम्हारे पास जब इंटीग्रेट करके डीएम से मल्टीप्लाई कर दिया तो एटलीस्ट ये फॉर्मूला किसका हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया ना, क्योंकि हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के पहले से आपको फॉर्मूले बताए हुए हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया Yes. के फॉर्मूले हमने पहले से बताए हुए हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला याद है, ये बताया था ना, डीएम आर स्क्वायर, Yes. तो ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन गया ना, फिर ये पार्ट ये भी बन गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये आई बनेगा, ये आईसी बनेगा, प्लस डी इंटीग्रेशन ऑफ डीएम टोटल मास ऑफ द बॉडी हो जाएगा, एम डी स्क्वायर, आई इज इक्वल आई सी प्लस एम डी स्क्वायर। और इसको जीरो Okay, क्यों sir. किया है वो मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ, व्हाट इज दिस, ये आपके 12th के बोर्ड्स में है डेरिवेशन, हाँ इसलिए करा दिया मैंने, तो 12th में आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। रोटेशनल मोशन थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ना बेटा, ये मतलब ऐसा चैप्टर नहीं है कि मतलब आप बहुत ही लाइटली लेंगे तो आपको मतलब यू हैव टू पे वेरी वेरी अटेंशन, मतलब बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा आपको, डिफिकल्ट नहीं है बट यू हैव टू वेरी केयरफुल एंड काफी ज्यादा, मतलब ये क्लाइमेक्स है मतलब उसका फिजिक्स का। ये लास्ट चैप्टर है फिजिक्स का, मैकेनिक्स का लास्ट है, मैकेनिक्स खत्म हो जाती है उसके बाद फिजिक्स इजी हो जाती है। रोटेशनल मोशन इज द लास्ट चैप्टर ऑफ मैकेनिक्स, आफ्टर दैट मैकेनिक्स विल बी ओवर एंड फिजिक्स बिकम इजी, फिजिक्स इजी हो जाती है। सर Sir, इसके scroll बाद कौन down. सा सेक्शन हो गया? इसके चैप्टर बाद बहुत इजी चैप्टर्स है बेटा, ग्रेविटेशन है, सॉलिड है, लिक्विड है, बहुत इजी चैप्टर्स, वेव है, ऑसिलेशन है, दीज आर वेरी इजी चैप्टर्स, हीट है, वो सब इजी चैप्टर में कंसिडर किए जाते हैं। Sir, नीचे scroll करो ना. लेट मी, हाँ ये एक दिन एक, हाँ ये
Done, sir. Yes, sir. Okay. Now what is zero? Y2D. RC cos theta is zero. Actually, just here what is zero? Actually, body स्ट्रेक का है और ये सेंटर ऑफ मास है. यहाँ पे आपने डीएम लिया था, तो आरसी कॉस थीटा बिल्कुल ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा है ये. इससे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा है. एक मिनट. ये जो सेंटर ऑफ मास है, तो आपको मैंने टॉर्क पढ़ाया था ना, टॉर्क. आपको मैंने टॉर्क पढ़ाया था, ठीक है. तो सबका जो वेट होगा वो नीचे की तरफ होगा. एक्चुअली वेट सबका नीचे की तरफ होगा, mg. तो वेट सबका नीचे की तरफ होगा mg. तो एक्चुअली ये सबका जो है ये डिस्टेंस आ रहा है दिस वन ईयर. तो ये एक्चुअली टॉर्क अप्लाई कर रहा है. टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये टॉर्क अप्लाई कर रहा है बेसिकली. तो टॉर्क में क्या होता है कि ये तुम्हारा आरसी, हाँ, ये टॉर्क में क्या होता था? सम ऑफ ऑल द टॉर्क. ये कोई सेंटर ऑफ मास है, दिस इज सेंटर ऑफ मास. बॉडी बिल्कुल बैलेंस्ड है. तो सम ऑफ ऑल द टॉर्क, सम ऑफ ऑल द टॉर्क यू कैन से. क्या हो रहा है आज? इतने लेट क्यों आ रहे हैं सब लोग? सम ऑफ ऑल द टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज जीरो. क्योंकि बैलेंस, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अराउंड क्या होता है ना, बॉडी बैलेंस हो जाता है. अगर सेंटर ऑफ मास मैंने बताया था जब पॉइंट, अगर सेंटर ऑफ मास को आप बैलेंस कर लेंगे अपने, तो पूरा बॉडी बैलेंस हो जाता है. तो जितने भी टॉर्क लगते हैं बेसिकली सब, ठीक है, कितने क्लॉकवाइज लगते हैं उतने ही एंटी क्लॉकवाइज लगते हैं, तो अल्टीमेटली वो बैलेंस हो जाता है अबाउट द सेंटर ऑफ मास. तो बेसिकली टॉर्क जैसा बन रहा है. अगर जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डीएम जी आरसी कॉस थीटा डिस्टेंस हो जाता है, तो टॉर्क जैसा बन जाता है. सम ऑफ ऑल द टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज जीरो. ठीक है. तो अगर एग्जाम में आता है बोर्ड्स वगैरह पे, आप ये सब ड्रॉ नहीं करेंगे, बस एक लाइन लिख देंगे. इसको ऐसे वो लिख देंगे, सम ऑफ ऑल द टॉर्क, टॉर्क या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट सेंटर ऑफ मास इज जीरो. वो जीरो होता है, इसलिए ये वाला पार्ट जीरो हो जाता है, क्योंकि वो टॉर्क में चला जाता है और बैलेंस कर दे. क्योंकि एक ही पार्टिकल कंसिडर करो, एक ही पार्टिकल थोड़ी ना होगा, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे. तो सारे डीएम को कंसिडर करोगे, सबका वेट नीचे की तरफ होगा और टॉर्क लगना स्टार्ट हो जाएगा. कुछ पार्टिकल्स को क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेंगे, कुछ पार्टिकल्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेंगे, तो अल्टीमेटली वो जीरो हो जाता है. ठीक है. तो ये लास्ट पॉइंट जीरो इसलिए हो जाता है, आप लिख सकते हैं दो लाइन में, सम ऑफ ऑल द टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज जीरो. तो फाइनल फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया? दैट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू IC प्लस md स्क्वायर.
आप चाहो तो लिखना चाहो तो ये लिख सकते हैं, लेकिन बोर्ड्स में सिर्फ 2 लाइन लिख के खत्म करना, डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है? I is equal to IC plus MD square. सर हाँ, सर एक ही मिनट ऊपर स्क्रॉल करो ना प्लीज। देखो रोटेशनल मोशन बहुत अच्छे से पढ़ो, ठीक है, और बोथ द मेडिकल एंड जे। डन सर, थैंक यू। सर इस पे आप डीपीपी सेंड करोगे क्या? ये डीपीपी नहीं, मैं 2-4 एग्जांपल लेकर आता हूँ मैं इसके, ठीक है, ओके मैं 2-4 एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए, ठीक है। आई विल टेक, हाँ एग्जांपल ले लेता हूँ 2-3, कैसे यूज कैसे करेंगे, हाउ टू यूज इट, एप्लीकेशन, एबिलिटी कॉम्प्लीट। सो मैं एप्लीकेशन स्टार्ट करूँ, हाउ टू यूज इट। यस सर। ओके, तो हमारा सर एक फॉर्मूला, ही हाँ ठीक है, ठीक, कॉपी करिए। डन सर। Okay, now let me start the application part. इसके examples ले, let's say examples. Let me the first example of ring. Let's the first example of ring. लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो थ्योरम मैंने बताया है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि तुमको आई तो चलो फाइंड आउट करना है, लेकिन जो आईसी है ना, वो हमेशा कहां से पास होना चाहिए? सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए, अदरवाइज ये थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर तुमको आईसी नहीं मालूम जो सेंटर ऑफ मास से पास होता है, तो फिर ये थ्योरम नहीं लग पाएगा। आईसी जानना जरूरी है जो सेंटर ऑफ मास से पास होता है, इसीलिए मैंने सी लगाया है, सेंटर ऑफ मास। एम मतलब मास, डी इज द सेपरेशन, नॉर्मल सेपरेशन बिटवीन द बोथ द एक्सेस, और आई आपको फाइंड आउट करना। आप कहेंगे आईसी फिर हम क्या करेंगे? आईसी हमने बताया था ना बेटा, आपको बहुत सारे फॉर्मूले बताए थे, याद करो, मैं वापस आपको थोड़ा इधर ले, ये सब आईसी है, देखो ये सब आईसी है, रिंग का ये सब आईसी की वैल्यू बेटा, दीज आर ऑल आईसी। आईसी मतलब पासिंग थ्रू सेंटर। स्क्रीन दिख रहा है ना, रिंग का कितना था आईसी? एम आर स्क्वायर। डिस्क का कितना था आईसी? हाफ एम आर स्क्वायर। रॉड का कितना था आईसी? एम एल स्क्वायर अपॉन 12, ठीक है। तो ये सब आईसी है, तुम्हारे जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, दैट वन, एवरी एवरीथिंग इज पासिंग, एवरी एक्सिस इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ये जो मैंने आपको एक लिस्ट ऑफ फॉर्मुलेज, ये द स्टैंडर्ड फॉर्मुलेज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्चुअली दे आर आईसी बेसिकली। आईसी मतलब एक्सिस पासिंग a moment of inertia about those axes which are passing through center of mass. सेंटर ऑफ मास से पास होना जरूरी है, देखो सभी सेंटर ऑफ मास से पास हो रहे हैं एवरीडे। तो आईसी आपको याद करने पड़ेंगे सब, तभी आप एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैं एग्जांपल लेके बताऊं रिंग का। लेट्स से सपोज इट्स अ रिंग, लुक हियर, इट्स अ रिंग, एंड तुम्हें एग्जाम में बोला गया कि इट्स अ रिंग, mass of the ring is m and the radiuses are, okay, radiuses are, and exam में दिया गया you have to find the moment of inertia about this axis। एग्जाम में आपको दिया गया कि suppose you have to find a moment of inertia about this axis which is tangent to the ring, which is tangent to the ring and perpendicular to the plane of the ring, you have to find this I।
It is tangent to the ring and it is perpendicular to the plane of the ring. तो फिर कैसे करेंगे आप? तो फिर आपको ध्यान देना पड़ेगा, सर ने मुझे आईसी बताया था तो मैं वाला पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर सकता हूँ। Are you getting? You want to calculate I, आपको I फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे? आप अप्लाई करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ध्यान से देखो सब लोग, ठीक है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे? सी तो आप बोलेंगे कि सर हमको तो मालूम है कि आईसी क्या होता है, जो सेंटर ऑफ मास से पास होता है। हियर इज द सेंटर ऑफ मास, तो आई नो वेयर इज द आईसी। आईसी इधर होता है और मुझे तो आईसी का फॉर्मूला भी मालूम है। क्या फॉर्मूला था इसका? यस, रिंग का mr square. mr square, and you can easily get perpendicular distance between both the axes. You can say sir perpendicular distance between both the axes जो होगा वो radius of ring के बराबर होगा। तो I can calculate I, मुझे I मिल जाएगा। तो I कैसे मिलेगा? तो आप ऐसे बोल सकते हैं सर मुझे I फाइंड आउट करना है, you want to calculate I, तो I कैसे मिलेगा? According to parallel axis theorem, parallel axis theorem, I is equal to IC plus MD square। तो I is equal to IC की वैल्यू आप कहेंगे सर हमको मालूम है। अच्छा IC नहीं याद होगा तो नहीं कर पाओगे फिर। मैं बार बार अपने वर्ड्स को रिपीट कर रहा हूँ, सेम एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अगर IC नहीं मालूम होगा तो आप नहीं कर पाएंगे फिर इसको। IC क्या है? mr square plus m, or what is the normal separation between both the axes? These two axes are parallel. What is the normal separation between both the axes? That is r, that is the radius of the ring, and that is you can take as d, that is mr square. So you can say it is equal to 2mr square. Are you getting this one? Yes, sir. समझा ना? Yes, sir. अच्छा अगर अच्छा ऐसा नहीं कोई भी, लेकिन पैरेलल होना चाहिए। लेकिन पैरेलल होना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, आईसी जो है हमेशा तुमको मालूम होना चाहिए, या आई मालूम होना चाहिए, आईसी मालूम, दोनों में से कोई तो एक मालूम होना चाहिए, तभी वो काम करेगा, अदर नहीं काम करेगा। अगर आई गिवन है तो आईसी निकाल सकते हो, आईसी गिवन है तो आई निकाल सकते हो। अब तुम्हें अगर ये फॉर्मूला मिला हुआ है आई इज इक्वल टू आई सी प्लस एम डी स्क्वायर, अगर तुम्हें ये नोन है तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर ये नोन है तो फिर आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि कोई तो एक्सिस ऐसा होना चाहिए जो सेंटर ऑफ मास से पास होना जरूरी है, नंबर वन। नंबर टू, दोनों के बिटवीन डिस्टेंस ये डी मालूम होना चाहिए। पर ये बिल्कुल नॉर्मल परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो और कोई डिस्टेंस नहीं, परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस है, नॉर्मल सेपरेशन। Normal separation between both the axes, and both the axes should be parallel. Then you can apply this theorem. Okay. Now I am taking few more examples. See here. Just see, I am taking few more examples. Let's say, आपको याद है मैंने लास्ट लेक्चर में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सिखाया था। तो परपेंडिकुलर एक्सिस क्या, दीदी आज तुम्हारा नेट बाहर हाँ सी हियर, आपको याद है मैंने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सिखाया था। तो सी हियर, मैं फ्लैशबैक में वापस ले जाता हूँ, ठीक है? देखिए जरा, हाँ अलोंग द डायमीटर वाला देखो, ये मैंने डायमीटर वाला बताया था ना, अलोंग द डायमीटर ऑफ द रिंग। तो डायमीटर ऑफ द रिंग का क्या आया था? रिंग हाफ एम आर स्क्वायर आया था ना, डायमीटर के अलोंग क्या आया था? हाफ एम आर स्क्वायर। ठीक है, हम इसको भी यूज कर सकते हैं। सपोज अगर अब तुम्हें उसने प्रॉब्लम चेंज कर दिया एग्जाम में अगर उसने फिर से रिंग का एग्जाम्पल लिया और उसने बोला कि लेट्स से इट्स अ रिंग हियर, और रिंग में लेट्स आई एम टेकिंग एज अ रिंग हियर, जस्ट लेट मी स्क्रॉल इट फर्स्ट, उसके बाद आप कॉपी करिएगा। लेट्स से ओके दिस इज अ रिंग हियर, इट्स अ रिंग हियर, एंड यू नो कि जो और आपको एग्जाम में दिया गया यू टू फाइंड हियर, यस यू हैव टू फाइंड moment of inertia about this axis which is tangent to it, आपको अब आई फाइंड आउट करना है, बिल्कुल उसके प्लेन में है। जस्ट लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपर, नहीं हो पाया प्रॉपर, नहीं बन पा रहा है, लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपर।
Okay. Just a minute. Let me draw an axis proper because you have to imagine that one basically. Uh, yes, in the plane. Let's say this is axis here.